number 1. Today we are going to discuss the main components of supercomputer or the simple computer, in which we are going to describe about the central processing unit. The last time we discussed a little bit about the CPU, and today we are going to discuss more about the ROM and the RAM, and the difference between them as well. And we will discuss about the input devices, the output devices, and what are the difference between them. And today we are going to also discuss about the secondary and the backing storage. Yes, but any question? What's the difference between RAM and ROM? RAM and ROM. Today we are going to discuss that. Okay. All right. Okay. So firstly, we are going to start with the simple device that is known as a CPU. We also call it as a central processing unit, the CPU, a most common and the basic device, basic component. And you can see the definition. It's also called as a brain of the computer. But why we call it as a brain? Because if we study or experiment our own body, जो भी एक्टिविटी हमने परफॉर्म करनी होती है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर ब्रेन. ऐसी है ना? Yes. चाहे हमने मूवमेंट करनी है, चाहे हमने कुछ भी एनी टास्क दैट वी वांट टू परफॉर्म बाय अ ह्यूमन बॉडी दैट रिक्वायर्ड टू जनरेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ब्रेन. ऐसी है, चाहे हमने कुछ भी करना हो, चाहे मैंने एक फिंगर मूव करवाना है, चाहे मैंने कोई हैवी काम करना है, सेम इन द कंप्यूटर whatever task I want to perform, I need a permission. I must be required the input from the CPU. That is why we call it as a brain of the computer. Done? Yes. Task can be in any format, like you can see. It will be used in a searching, like if you want to search anything from the computer or the mobile, the CPU will be utilized here as well. If you want to sort, what is mean by sort, Betty? Sort, like we are finding something and like you're sorting No, some things this out. sequence arrangement of the data, okay, in the sequence in the queue is known as a sorting, rearrangement of data. Done. Yeah, all right. Calculating mean mathematical calculation, mean addition, subtraction, or like that. Also whatever decision we are going to take place over the computer, decision mean uh, there is a time when we want to delete that particular file, so there is a window appear. Are you sure you want to delete that? That is also done by the use of CPU. If you want to, we can say okay, rename. If you want to move, so any decision we want to take on the computer, we must require input from the CPU, or that is done by the help of a CPU. That is why we call it as a brain of the computer. Done. Yes. Okay, so you can see the speed of the CPU is measured in a gigahertz. Gigahertz, hertz is the unit of the frequency, and giga is the 10 raised to power 3. Uh, that will be a new thing for you, but you just always remember the speed of the CPU is measured in a gigahertz. There is a far speedy speed than the we measure in a minutes, in the seconds, in the hour. Got it? You can see over there. Uh, You see, a 1 yes. gigahertz CPU can carry a 1 billion of instruction per second. In a single second, we can perform how many instruction? 1 billions. So that is why its unit is a gigahertz. Done? Only CPU is measured by gigahertz, or anything else can be also measured, or just CPU mainly. I didn't understood your question. What you want to say? Like, is it specifically gigahertz for CPU, or anything else can be also measured with gigahertz? Yes, there are the speed of RAM as well, the speed of bus that travel a data as well. It also has the same unit in the gigahertz format. Got it? I didn't get the like the 4.1 gigahertz CPU can carry out 1 million instructions per second. You didn't got okay, what is mean by that? G? You didn't got this point. Yeah, yeah. The fourth one. Okay, okay, Bete. If suppose you have a 1 second, you work on a 1 second for a computer. In a single 1 second, more than 1 billion instructions are performed by the computer. Got it?
मींस के Yeah. बेटे 1 सेकंड में 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर परफॉर्म कर चुका होता है. Done? Yes, yes. Okay. Done? Yes, yes, sir. So this I is understand. that is why we call it as a 1 gigahertz unit given to that. Because इसको measure करना वैसे बहुत मुश्किल हो जाएगा ना when we discuss in the form of seconds and the number of words. Done? Yes. But only one thing you have to remember, that is the unit of the CPU to measure the speed, that is a gigahertz. Done? Yes. Okay. I hope you heard about this company Intel. I'm not sure. I think I've heard, but it's not ringing a bell. Yes, most of the computer that are from the company of HP or the Dell, both have the CPU generation industry as well, which is mostly powered by or named by the Intel. Got it? And Yes. 80% of the world use this Intel CPUs. All right. Then Yes. this was all about the CPU. Any question from the CPU? Okay. Then बेटे? Yes, sir. Okay. अब एक यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के समझा दूंगा. You have to understand that diagram as well. Let me see, is there any empty space available over there? Yes. Okay, बेटे. Suppose आपकी कोई image है जिसको आपने open करना है, view करना है और फिर उसको क्या करना है, आपने कोई भी editing perform करनी है. Got it? अब उसके Yes. लिए firstly हम क्या करते हैं, हम अपनी कंप्यूटर की जो है ये suppose करें कि इस PC में जाते हैं, वहां से जाके वो स्पेसिफाइड जो भी एरिया होता है उसको क्लिक करते हैं और जो भी हमारे पास उसकी पिक होती है उसको हम क्लिक करते हैं और वो ओपन हो जाता है. ऐसे ही बेटे नॉर्मली वी Yes. परफॉर्म दिस टास्क. सेम विद परफॉर्म टास्क इन द मोबाइल एज वेल. बट ओरिजिनली क्या होता है, दैट पर्टिकुलर फाइल इज परमानेंटली स्टोर इन अ हार्ड डिस्क. इंस्टेड ऑफ हार्ड डिस्क वी कॉल इट एज अ एचडी. है बेटे? Okay. फर्स्ट स्टेप समझ आ गया कि वो कहाँ होगी, हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर होगी. फिर जब हम उसको क्लिक करते हैं 1 टाइम और 2 टाइम, वो मूव करती है फ्रॉम हार्ड डिस्क टू द रैम. डन? Yes. और फिर उसने मूव करना होता है आपके सीपीयू तक. और सीपीयू के ऊपर 2 चीजें लगी होती हैं. एक को हम कहते होते हैं कैशे और एक को हम कहते होते हैं रजिस्टर. आपकी बुक में रजिस्टर के बारे में तो नहीं डिस्कस किया हुआ, but they are discussing about the cache. So I hope you got. And same when we move that file back, जब हम उसको क्रॉस करते हैं तो वो firstly RAM के पास जाती है, then again from RAM to go to the same location at the hard disk. क्या आपको इस पैटर्न की समझ आ गई? Done? Sorry, by mistake, I left. जी बेटे, you understood this pattern? Can you explain how like HD goes from RAM again? That was a bit First, unclear. okay, anything we have permanently stored in our computer that is in a place of hard disk. Done? Okay. Like we have a photos, we have videos, तो वो परमानेंटली कहाँ स्टोर होती हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं. जब हम उनको क्लिक करते हैं तो फर्स्टली मूव करती है टुवर्ड्स द किससे, रैम की तरफ. डन? रैम में जाके इट्स वेट फॉर इट्स टर्म और जैसे उनकी टर्म आती है दैट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सीपीयू. डन बेटे? क्या इस बात की समझ आ गई? It moves from Same. RAM to CPU. हाँ जी. Nothing. देन जब हम उसके टास्क परफॉर्म कर लेते हैं तो सीपीयू अगेन बैकवर्ड मूव करवाता है, फर्स्टली रैम के पास आता है और फिर रैम से सेम लोकेशन में हार्ड डिस्क में जाके वो क्या होता है, डेटा स्टोर हो जाता है. डन? Yes. इस सारी एक्टिविटी को उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज कॉल्ड एज अ मेन मेमोरी. है ना बेटे? Okay. Whatever application or whatever file we have stored in our computer that is stored in a secondary storage, which is also called as a hard disk. Done? G. जब हम उसको क्लिक करते हैं तो start moving towards the main memory. Main memory also known as a RAM. Done? Temporary Okay, data sir. from application. यहाँ पे the CPU will check the cache. Cache is a small storage device. मैं इसकी definition अभी आपको लिखवाता हूँ कि
टर्न है कि नहीं है, या इसको वेट करना पड़ेगा. गॉट इट? Okay. If the data is not in the cache, then CPU will check from the RAM and transfer data to the CPU. Done? Okay. Yes. Cache will transfer a next piece of data to the RAM into a cache, and then CPU will again check the cache. तो बेटे वो इसी को अगेन जो है वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है सारी की सारी बात को. वो क्या कह रहे हैं, सपोज यहाँ पे एक मेरे पास फाइल है, ये इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, ऑन करना चाहता हूँ. तो फर्स्टली वो कहाँ आएगी, हमारे पास रैम में आएगी. ओके, इंस्ट्रक्शन जो है वो डायरेक्टली सीपीयू को चली गई है कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मैं ऑन करना चाहता हूँ. Sir, बट give me a रूट minute. जो But yes, sir. Continue, please. वो डिस्कसिंग कि सपोज हमने इस फाइल को क्या करना है, ओपन करना है. तो कमांड तो चलेगी सीपीयू के पास कि स्पेसिफिक फाइल को ओपन करना है, बट वो रूट कौन सा फॉलो करता है कि वो पहले आके रैम में, सपोज यहाँ पे आके वो क्या जाएगा, स्टोर हो जाएगा. सीपीयू कमांड भेजता है कैशे को कि आपके पास वो फाइल है, अगर है तो ठीक, या नहीं नहीं तो फिर उसको मूव करवाया जाता है फर्स्टली कैशे की, और फिर उसको मूव करवाया जाता है टुवर्ड्स द सीपीयू. डन? All right. What are these boxes like above the CPU, cache, and RAM? Like, like the gray boxes. These are the memory location where we store data. Because Like the there is a picture. possibility, कि we click more than one files. Like इधर आ गया तो ये W जो है वो इधर आ सकता है. Got it? ये office जो है वो इधर आ सकता है. This particular file can move to this location. Okay, so it's a kind of a storage area where it's a kind of a memory location where we store a different type of data. But the pictures and the videos we are seeing, these the box represents that. Exactly. No, not the box. These are the memory location where we can put any file. Mhm. It can be a this application, it can be a any image. हो सकता है बेटे आपकी कोई image आ जाए. It can be any video as well. It can be any textual file as well. So कोई भी हो सकता है. उन्हें क्या करना है, इन हर एक मेमोरी लोकेशन पे वन बाय वन को पुट करना है, और फिर उनको वन बाय वन हमने आगे ट्रांसफर करना होगा. तो सीपीयू से कैशे पे जाती है और उससे आगे रैम. तो अगर रैम की रैम मतलब सारा स्टोरेज, जी जी, उसका सारा स्टोरेज फिल हो, तो फिर वो लाइक इट गोज बैकवर्ड्स और. स्लो हो जाता है. नो नो, इट्स गेट स्लो. तो फिर हमें उसको फ्री करना पड़ता होता है. बट ऐसा होता नहीं. देयर इज अ वेरी फ्यू एग्जांपल्स कि जिसमें हमारा रैम फुल हो जाए. ऑलराइट. आपने नॉर्मली लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारा मोबाइल स्लो डाउन हो जाता होता है, हमारा या लैपटॉप स्लो डाउन हो जाता होता है. फिर वो क्या होता है कि हम उसकी रैम की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज कर देते हैं. आई आस्क्ड यू लास्ट टाइम क्वेश्चन एज वेल कि अगर आप एक मोबाइल परचेज करते हो तो उसमें क्या चीज देखते हो. तो उसमें सबसे जो मेन चीज होती है वो हम रैम देखते हैं. ओके, लाइक दिस एक स्टोरेज एरिया इज 464, 864, 81228, 8 GB. The lesser amount of data storage capacity is in a RAM. वो जितनी कैपेसिटी ज्यादा होगी रैम की, उतना ही ज्यादा वो डाटा स्टोर कर पाएगा, उतना ही ज्यादा आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बेटर है. यस. आई होप यू गॉट इट.
Yes, sir. Now the question is कि what is a cache? क्योंकि सीपीयू तो हमने रीड कर लिया, अब डेफिनेशन कौन सी रह गई थी? कैशे रह गई थी, और बेटा हमारे पास रैम रह गया, और बाकी उनमें सबसे पहले क्या है बेटा? हमारे पास कैशे। कैशे इज अ लाइक ऑफ असिस्टेंट ऑफ सीपीयू। Okay. व्हाई वी कॉल इट असिस्टेंट? क्योंकि सीपीयू के पास जो भी इंस्ट्रक्शन ने जाना है या आना है वो पहले कैशे से होकर गुजरेगी। डन है? Yeah. एंड इट्स अ वेरी स्मॉल स्टोरेज एरिया, बट इट्स अ फास्ट वन। अगर कभी क्वेश्चन आए कि विच वन इज द फास्टेस्ट डेटा स्टोरेज डिवाइस, तो सबसे पहला नेम जो है वो किसका आएगा? कैशे का आएगा, बिकॉज इट्स स्पीड इज वेरी हाई बट अ वेरी लिमिटेड स्टोरेज एरिया। डन? Fastest क्या? फास्टेस्ट Fastest स्पीड, क्या sir? Speed. फास्टेस्ट मेमोरी, हाँ मेमोरी जो स्पीड है ट्रांसफर करने की, दैट इज अ फार फास्टर देन अदर डिवाइसेस। So it's located between the processor and the RAM. Processor mean bit is CPU. Yeah. Pattern is cache collect data from the RAM and it transfer it to the CPU. Okay. So you can see the cache will automatically transfer to the next set of data from the RAM to the cache, and so automatically आपका वो CPU की तरफ चला जाएगा। Done? Okay. Okay. जो एक चीज है, uh, जो एक CPU है, सपोज कि ये इसके ऊपर एक बॉक्स है। सो फिजिकली हमारे यहाँ पे क्या लगा होता है? कैशे लगा हुआ होता है फिजिकली। इट्स अ फिजिकल डिवाइस है। और कैशे के लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है जिसको हम L1 कहते हैं, फिर उससे थोड़ा सा छोटा लेवल होता है जिसको हम L2 कहते हैं, फिर उससे छोटा लेवल आता है जिसको हम L3 कहते हैं। फर्स्टली डाटा L1 का फुल होगा, फिर L2 का फुल होगा, फिर L3 का। जैसे L3 का फुल होता है, कैशे फुल हो चुका होता है, फिर आपको और डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं रह जाती। गॉट इट? क्वेश्चन आ सकता है कि लेवल ऑफ कैशे कितने होंगे, तो आपने याद रखना 3 होते हैं, L1, L2 एंड L3। L1 बिगर होता है, L2 मीडियम होता है, और L3 जो है वो स्मॉल होता है। डन? Yes. ओके, नाउ Yes, sir. द रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। बेटे इस वर्ड से क्या आपको समझ आता है? Like Firstly, you can anything see that's the diagram. random. Yeah, yeah. This is the diagram of a RAM, and this is a slot where we put the RAM or insert the RAM in the motherboard. So, like you said, okay, randomly we can access any memory location. Okay, so this is the name of the RAM. Okay, it's a kind of a storage area where we store data for the temporary, and we can access to the any memory storage location at any time. Then, Can you explain RAM again? okay, so RAM is known as a random access memory. So it means that we can access any memory location randomly. There is no need to follow any sequence. There is no need of any rules and regulation. We can access any memory location randomly. Then, So like it's like मतलब जो फजूल की pictures and videos आती हैं, that what RAM means. uh, जो recently आपका डेटा पड़ा होता है ना, that is in a RAM. Ah, Got it? okay, okay. Recently. Okay. Yes. So like what's वो the कैशे और like RAM दोनों। okay. What's the like difference and similarity between these three? RAM, CPU and cache. Hey, CPU perform the instruction. Every instruction on the computer done. Let me Cache write this. helps CPU in performing a different type of task, and RAM is just only a storage area where we store a data temporarily, and CPU can access any memory location randomly. Can you repeat this? I need to write. This is written in the
in this PPT. You just need to understand this. All right. All right. Okay. So you can All see the right. definition of RAM. They say RAM is a part of computer that store a temporary which instructions that the computer is running whilst the data is being processed by the CPU. So whatever task or whatever instructions if you want to perform, these instructions temporarily store in the RAM. Got it? Yes. RAM is a volatile. What do you mean? What do you understood by the word volatile? And it's a very broad Uh, definition of volatile. like I think when you cannot like access the data that you have stored. No, no, no. The question mostly appear in the past paper why RAM is called volatile memory. So, but Why? a volatile means कि if the electricity available तो data available हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाए, पावर खत्म हो जाए तो डाटा भी लॉस हो जाए. समझ आई कि नहीं? Uh, नहीं. नहीं सर, नहीं समझ आई. बेटे हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो सारा का सारा डेटा जो है वो हमारे रैम में है. जैसे ही हमने कंप्यूटर को शट डाउन किया तो रैम पूरा खाली हो जाता होता है. और जब Oh, हम दोबारा ओपन करते हैं, जब हम दोबारा, अच्छा आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि इफ कंप्यूटर इज स्टक एनीवेयर या फिर वो हैंग हो जाता है या फिर जो है वो हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी स्पीड अप स्लो हो गई है, तो हम उसको रीस्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो टास्क परफॉर्म हो जाता होता है. वो रीस्टार्ट मीन्स क्या होते हैं, हमने अपना सारा का सारा रैम जो है वो क्या करना होता है, फ्री करना होता है. गॉट इट? सो वोलेटाइल yeah. मीन कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि हमारा कंप्यूटर ऑन है तो डाटा अवेलेबल रहेगा. जैसे ही हम टर्न ऑफ करेंगे सारा का सारा डाटा क्या हो जाता होता है, लॉस हो जाता होता So can't we like just save it somewhere? है. नो, फॉर द सेविंग वी हैव अ हार्ड डिस्क एंड द मेमोरी कार्ड. गॉट इट? These are the All right. temporary storage areas, cache and the RAM both. All right. Done? Yes. Okay, now we move to the ROM. ROM is somehow look like a RAM as well, but instead of we can say temporary, it's a permanent data storage device. Okay, in a ROM, data is stored permanently, while in the RAM, data store are temporary. Second difference is ROM is a non-volatile memory device. Non-volatile means it does not depend upon the electricity and the power. कंप्यूटर ऑन हो ऑफ हो इसमें डाटा सेम एज इट इज रहता होता है. डन? ठीक. And ROM stand for read Yes, sir. only memory. The only one purpose of the ROM is to read data. Read mean to move the instruction from hard disk to the CPU. Got it? So It's in a दोनों की like the pictures are same. So how can we like tell the difference between these two? yes, yes, it's a working type of different. Okay, working Oh. के लिहाज से ये different होते हैं, So the but look like a same. diagram is same, Diagram but will the yeah, the working is different. yeah. So ROM stand for read-only memory. Read-only memory means only to move data from hard disk to the CPU. Just only this task. For that we use the ROM. We cannot make any changes. We just only use for the read-only. But if somebody share any file with you, तो उसकी access rights होती हैं कि you can edit, you can only view. I hope you experience that. Huh? You can only view this file. You can edit this file as well. जी बेटे, have you Yeah, I think experienced that or not? I think I've So seen it. the file which is only for the view, yes, which is only for the view type, that is by the use of a ROM. Same, जो भी instruction ROM से transfer होगी, that is only for the reading. We cannot make changes on that. All Done? right. All right. तो बेटे हम कंप्यूटर की किन इंस्ट्रक्शन को चेंज नहीं करना चाहते, उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते. ठीक है, हम उसमें वो जो स्टार्ट का बटन है उसको चेंज नहीं करना चाहते. यानी कि वो तमाम के तमाम इंस्ट्रक्शन which does not require any change, such instructions, such files are stored in a ROM. All right. Done? Yes. So ROM
normally hold a boot up. What is mean by boot up, bete? Uh, Starting a computer. Computer को yes starting and shutting both on and off Right. इंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ होती है हमारे पास रोम में होती है. आपने देखा होगा जब हम ऑन करते हैं तो सेम टाइप ऑफ सीक्वेंस फॉलो करता है कंप्यूटर. जब हम शट डाउन करते हैं तो Yeah, सेम yeah. टाइप ऑफ सीक्वेंस फॉलो करता है. इट मींस दैट कि वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहाँ है स्टोर इस टाइम रोम में स्टोर है. गॉट इट. Yes. सेम वी हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडो. वो भी बेटे कहाँ स्टोर होती है हमारे पास रोम में स्टोर हुई होती है ताकि हम उसमें बाद में किसी भी किस्म की चेंजेस ना कर सकें. डन है. Yes. बट ऑन द अदर हैंड रैम में हम किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. एनी टास्क यू वांट टू परफॉर्म वो हम परफॉर्म कर सकते So technically, ROM is better than RAM. हैं. बोथ रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटर. इन दोनों के बगैर वर्क नहीं होता. मींस कि अगर देखो रोम ना हो तो हर दफा शटडाउन का जो मेथड है वो हमें डिफरेंट फॉलो करना पड़ेगा और हमें पता भी नहीं होगा. इसी तरह ऑन करने का जो है वो डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर सकते हैं. जब अगर रोम ना हो तो ये जो स्टार्ट बटन है ये कभी लेफ्ट में आ सकता है, कभी राइट में आ सकता है. दोनों रिक्वायर्ड हैं. बोथ आर वी कैन से कि इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. इन दोनों के बगैर कंप्यूटर नहीं वर्क कर सकता. डन है. Yes. So till now we have studied about the cache. You can see cache is the fastest assistant to a CPU, and normally whatever data CPU perform वो इसमें store होता है. On the other hand, RAM is a kind of temporary data storage device. Volatile data है, वो lost हो जाता है जब हम क्या करते हैं बेटे कंप्यूटर को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं. है ना. Okay. ROM is read only kind of जिसमें हम boot up के या इसको हम लोग जो है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी डिवाइस कहते होते हैं. बट तीनों ही लाजमी है. ऐसा नहीं हो सकता कि हम कैशे यूज करें इन दोनों का. नहीं बेटे, हमारे पास स्मार्ट वॉच भी होगी उसमें भी ये तीनों होंगे, मोबाइल होगा उसमें भी ये तीनों होंगे, सुपर कंप्यूटर होगा उसमें भी ये तीनों के तीनों अवेलेबल होंगे. डन. Yes. सो बस इन व्हाटएवर तीनों में वी बस हैव ये डिफरेंस है. सेम डिफरेंस है यही. Whatever we have studied, we have written over there. जैसे cache memory is the fastest type of memory. मैंने कहा था it is located between the CPU and the RAM. It hold commonly used data. RAM is a random access memory, is a volatile type of memory. Volatile mean जब हमारे पास कंप्यूटर ऑन होगा ऑफ होगा तो सारा का सारा डेटा लॉस हो जाएगा. Which means that all data will be lost on the startup. In contrast, ROM is a read-only memory and it's a non-volatile. Non-volatile mean आपका कंप्यूटर ऑन है ऑफ है, जो उसमें डाटा है वो परमानेंटली क्या रहता है स्टोर रहता है. हम उस पर चेंजेस नहीं कर सकते. रोम में कौन सी होती है रीड ओनली फाइल लाइक वी हैव अ बूट अप इंस्ट्रक्शन और वी हैव अ विंडो. वो सारा का सारा जो है वो कहाँ स्टोर होता है आपका रोम में स्टोर हो रहा है. डन है. जी. यहाँ तक बात समझ आ चुकी होगी आप. जी. Now this was all about the components of the computer. नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द इनपुट एंड आउटपुट. जी बेटे अगर अभी भी माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो ताकि हम उसको No, दोबारा till रिवाइज now. कर दें. मैं फिर से Not एक till now. डायग्राम बना देता हूँ. मैं डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए. ये बेटे हमारे कंप्यूटर का मदरबोर्ड है. ठीक है. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मदरबोर्ड क्या होता है. इसमें हमारे पास यहाँ पे लगा होता है सीपीयू. सीपीयू ने हर टास्क सीपीयू ने परफॉर्म करना होता है. सीपीयू के ऊपर जो है वो छोटा सा क्या लगा होता है कैशे लगा होता है. उसके साइड पे हमारे पास जो है वो क्या होता है रैम होता है और रैम के साथ ही हमारे पास जो है वो क्या अटैच होता है हमारे पास रोम होता है. डन बेटे. यहाँ तक जी. बात. सपोज कि आपकी एक फाइल है जो कि किस में पड़ी हुई है हार्ड डिस्क में यानी कि एचडी में पड़ी हुई है. आपकी कोई वीडियो है जिसको आप एडिट करना चाहते हो. ठीक है. उसमें म्यूजिक फर्स्ट को आप लगाना चाहते हो. सो पैटर्न ये होगा कि जो भी आप फाइल को ऑन करना चाहते हो तो फर्स्टली वो कहाँ आएगी आपके पास रैम के पास. और रैम में आके अपनी एक स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन में सपोज मैं कहता हूँ कि ये सीरियल नंबर 4 है. वहां आके वो वेट करेगी जब तक कि सीपीयू हमारा फ्री ना हो जाए. डन है. Yes. सीपीयू जब फ्री होगा तो वो कैशे को कहेगा कि आई एम फ्री.
कैशे जाएगा रैम के पास के नेक्स्ट टर्म की इसकी, वो कहेगा 4 वाले की टर्म में, तो पहले कैशे के पास आएगी और कैशे के पास सीपीयू के पास आएगी, एंड नाउ यू कैन परफॉर्म एनी एडिटिंग बाय दिस। डन है? एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, इट विल बी मोर क्लियर। यस बेटे, आपने वीडियो जो है आपकी एक इमेज है, उसको आपने क्या करना है, एडिट करना है। ठीक है, आप गए वहां जाके आपने उसको क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वो कहाँ आती है, फर्स्टली रैम में आती है, और रैम में आके स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन में वो क्या करती है, वेट करती है। डन है? वेट किस चीज का करती है, कि सीपीयू फ्री है या बिजी है। वैसे तो सीपीयू बिजी होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड वो परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन वो टाइम इतना स्पीड अप होता है कि हमें जो वेटिंग टाइम है वो ऐसे लगता है कि जैसे 1 सेकंड था, हाफ सेकंड था। गॉट इट? या सीपीयू जब फ्री होता है तो फर्स्टली वो कैशे को इंस्ट्रक्शन देता है कि आई एम फ्री, तो वो कैशे जाके रैम से उस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को कहाँ ले आती है, सीपीयू तक ले आती है। ऑलराइट। सीपीयू इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है और बैकएंड इसी पाथ को फॉलो करते हुए उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे जो है वो जाके उसको क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। है ना बेटे? यस। अब ये रोल था किसका, रैम का, कि उसने क्या करना है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के जाने से पहले अपने पास क्या करना है, टेम्पररी स्टोर करना है। टेम्पररी क्यों बेटे, देखो जब ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाएगी तो इसका यानी कि जब ये सीपीयू के पास चली जाएगी तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, न्यू इंस्ट्रक्शन आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। है ना? और यूं सारा दिन यही टास्क यस। परफॉर्म करता रहता है। ठीक है। ओके, यस। अब ये रोल हो गया रैम का, कैशे का, सीपीयू का। अब रोम का क्या रोल है बेटे, अगर मैंने कंप्यूटर को ऑन करना है, ठीक है, अब ऑन करने के लिए ये बात तो नहीं हम फॉलो करेंगे। ऑन और ऑफ करने वाले जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, जिसको अभी हमने पढ़ा कि जिसको हम बूट अप कहते होते हैं, वो परमानेंटली रोम में स्टोर रहते होते हैं। जब हम क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिकली वर्क ऑन होती है और ऑटोमेटिकली उसको क्या करते हैं, हम लोग सारे सारे कंप्यूटर को ऑन कर देते होते हैं। है ना? वो अपनी लोकेशन चेंज नहीं करते, क्योंकि वो कहाँ स्टोर होते हैं, रोम में। एंड रोम नेम स्टैंड फॉर रैंडम रीड ओनली मेमोरी, जिसमें डाटा हमारा परमानेंटली स्टोर हुआ होता है। डन? यस। आई होप यू गॉट इट। वट एवर फाइल जिसको आप चेंज नहीं करना चाहते वो कहाँ स्टोर होगी, रोम में स्टोर होगी, और बाकी जितनी भी फाइल्स होगी वो पाथ जो फॉलो करेंगी वो रैम का करेंगी। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ टेक्निकल। अब हमारे पास इजी आ गया, दैट इज नाउन एज अ इनपुट एंड आउटपुट। व्हाट इज मीन बाय इनपुट बेटे? Like we are putting something into the, I think, CPU or into the computer. Very good. So all those devices which help us to enter data into computer is known as input devices, and output mean Like taking something out or like deleting it. exactly getting results or getting something out from the computer. Such devices are known as a output devices. We also name them as a peripheral devices. Got it? What devices? Because peripheral, because these are the extra. इनके बगैर भी हमारा कंप्यूटर वर्क कर सकता होता है। ठीक है। लाइक अगर हमारे मोबाइल में हैंड फ्री नहीं है तो फिर भी हमारा कंप्यूटर, हमारा जो मोबाइल है उसमें ऑडियो इनपुट हो सकती है और आउटपुट भी हो सकती है। Got it? So hand free is a kind of input and output both, and we call it as a peripheral device as well because it's extra. ठीक है। Done? यस। इनपुट डिवाइस की एग्जांपल क्या है, कीबोर्ड, माउस। आउटपुट भी क्या है बेटा, प्रिंटर है, स्पीकर है। स्टोरेज की एग्जांपल उन्होंने क्या दी हुई है, हार्ड डिस्क दी हुई है। हार्ड डिस्क, हमारे पास जो यूएसबी होती है, हमारे पास जो मेमोरी कार्ड होता है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्टोरेज डिवाइस। डन? All So right. input devices are the devices that pass data into the computer. Devices that take data from the computer are known as the output devices. Done? Simplest definition. Okay. Next is the secondary storage. अच्छा बेटे, we have discussed the storage जिसमें हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज आती है। Or प्राइमरी secondary. मीन्स, हाँ, प्राइमरी में क्या कुछ आएगा बेटा, हमारे पास आएगा रैम, रोम, कैशे, और एक आप लोगों की बुक में नहीं है, नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज अ रजिस्टर। ये चार तरह की जो डिवाइसेस हैं मेमोरी, डाटा स्टोरेज, इज नाउन एज अ प्राइमरी। व्हाई वी कॉल इट इज अ प्राइमरी?
In the absence of these devices, computer cannot primary- perform any task. Okay. तो प्राइमरी में लाइक मेन डिवाइसेस होती हैं एंड सेकेंडरी में लाइक नॉन इम्पोर्टेंट राइट. हाँ, जिनके बगैर कंप्यूटर वर्क कर सकता है. लाइक अगर यूएसबी ना भी हो, कंप्यूटर कैन स्टिल वर्क. अगर हमारे पास जो है वो हार्ड डिस्क ना भी हो, कंप्यूटर स्टिल कैन परफॉर्म वर्क. अगर मेमोरी कार्ड ना भी हो तो फिर भी आपने देखा होगा हमारे स्मार्टफोन जो है वो मेमोरी कार्ड के बगैर भी वर्क कर रहे होते हैं, है ना? Yeah. जिसमें हमारे पास यू कैन सी secondary device is also known as a backing, क्योंकि वो बैकअप बना रही होती है. स्टोरेज डिवाइसेस, these are the non volatile, means कि it does not depend upon the power और कंप्यूटर ऑन है कि नहीं है. ये इनमें डाटा जब भी हम स्टोर करेंगे, जब तक हम खुद उसको डिलीट नहीं करेंगे, डाटा विल रिमेन स्टोर. करेक्ट? Yes. We can store data for the long period of time. We can perform the read and write both tasks. का जो बेसिक पर्पस होता है that is to make a copy of the original files for the backing purpose. ध्यान बेटे? प्राइमरी का ना. Yes बेटे? आपने क्या बोला था किसका कॉपी का होता है. किसी भी फाइल का कॉपी जनरेट करने के लिए, बैकअप बनाने के लिए we use such devices known as a secondary storage devices. So this was, I think, all about. The main question is over there. Describe what is backing system. Backing system is secondary storage device. You can call it as a non-volatile. Data क्या होता है? Long time के लिए read हो सकते हैं, write हो सकते हैं. We are making up copies of these files. Done है बेटे? जी. I think that's it for today. Any question? Not now. अच्छा बेटे, it was a easier, ठीक है? Easy topic था ना? जी. जो just